अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome, my dear sisters, and welcome back, Chand Aunty. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. It means, O my sustainer, O Allah, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Once again, welcome my dear sisters. Monday evening, हम पढ़ रहे हैं सूरत अल बकरा पारा number 1. How many of you have Quran with you? It would be very nice if you open the Quran, sit with your notebook and a pen in your hand so that we can make notes. Alhamdulillah. Yes, Kishwar and Aisha I've seen. And Nishat. MashaAllah. Haan. So which ayat are we studying today, Chand Aunty? Ayat number 40. 40 onwards है ना इंशाल्लाह. पहले तिलावत होगी. Over to सुरैया. जी. सब मिलकर पढ़ेंगे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Little Maryam will recite the tilawa for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ameen. Alhamdulillah. Little Maryam, 11-year-old, she was doing the tilawat. अब हम पढ़ेंगे आयत number 40 से. What word by Shamim? Bismillahir Rahmanir Rahim. The 5th ruku starts from here. Ayat 40. Ya Bani Israel. What word? Ya Bani Israel.
ए औलादे इसराइल, ए इसराइल के बच्चों, उस्कुरू, तुम सब याद करो, तुम सब जिक्र करो, निअमतीय, मेरी निअमतों का, अल्लती, वो जो, अनअमतु अलैकुम, इनाम किया मैंने, अलैकुम तुम पर। किसने इनाम किया? अल्लाह ताला ने इनाम किया अलैकुम तुम पर। तुम कौन है? बनी इसराइल। वो और औफू, वफा वर्ड है इसमें, वफा, वफा का मतलब क्या होता है? पूरा करना। और तुम सब पूरा करो, बिअहदी, मेरा अहद। देखिए दाल या जेर दी है ना, तो वो दाल या जेर दी बन गया मेरा। जब एंड में या जेर ई आता है तो मेरा। और तुम सब पूरा करो मेरा अहद, मेरा, मेरी प्रॉमिस। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम, तुम्हारा, तुमसे किया हुआ अहद, तुमसे किया हुआ प्रॉमिस। ये कौन फरमा रहे? अल्लाह ताला। व इयाया, और सिर्फ मुझी से, फरहबून, फिर तुम सब डरो मुझी से। किससे? अल्लाह ताला से। Now we'll do it in English. Ya bani Israel uskuru, O children of Israel, remember. Uskuru, remember. Try to remember. Ni'matiya, my favors, my blessings. Allati, those. An'amtu, I bestowed. Alaykum, upon you, upon Bani Israel. Wa'awfu bi ahdi, and fulfill my covenant, my promise. Ufi bi ahdikum, I will fulfill your covenant, your promise. Wa iyaya farhabun, and fear me alone. Fear me alone. Okay, so this is ayat number 40. Now, since the ruku has changed, the topic also changes. The last topic was about Adam alayhi salam, right? Now, the topic changes here, and with the new topic, we should know what the background is. थोड़ा सा background देखते हैं कि ये बनी इसराइल है कौन. Okay. So बनी इसराइल कौन है ये हमको यहाँ से पता चलेगा. हमने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में. ओके, सो हु वाज आदम अलैहिस्सलाम? शमीम? He was the first human being on earth. Very good. He was the first human being upon the earth. Also, he was the first Nabi. Okay, अल्लाह ताला ने उनको फर्स्ट नबी भी बनाए. तो आफ्टर आदम अलैहिस्सलाम, Allah subhanahu wa ta'ala kept on sending the messengers on the earth in different areas. Okay, more than 1,50,000 almost messengers were sent throughout the earth. पूरी दुनिया में, not at the same time, लेकिन हर दौर में, हर इलाके में अल्लाह ताला ने अपने नबी भेजे. क्या करते हैं नबी आकर? चांद आंटी, नबी क्यों भेजे जाते हैं? कि अल्लाह के सब जो फरमान दिए गए हैं वो बताने के लिए कौमों को. Yes, correct. तो they are, the name suggests itself, पैगंबर, मैसेंजर. तो वो अल्लाह का मैसेज कन्वे करते हैं लोगों तक. हाँ, सिंपल वर्ड्स में कि नबी, मैसेंजर्स अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं. जैसे दुनिया में भेजना था इंसान को, तो अल्लाह ने दुनिया का इल्म सिखा दिया ना आदम अलैहिस्सलाम. Isn't it? Anam, are you there?
यस यस। तो दुनिया का इल्म सिखा दिया और उसके बाद क्या फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से कि जब भी कोई हिदायत आएगी यानी मैसेंजर्स आएंगे तो जो कोई अल्लाह के मैसेंजर्स की हिदायत यानी गाइडेंस को फॉलो करेगा तो उसके लिए क्या है कामयाबी है, सक्सेस है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये पढ़े थे हम। और जो नहीं फॉलो करेगा फिर उसके लिए क्या है, पनिशमेंट है और नुकसान है दुनिया में भी और आखिरत में। सो व्हाट इज द लेसन लर्न हियर कि दुनिया में रहने के लिए सिर्फ दुनिया का नॉलेज इज नॉट इनफ, अल्लाह का डिवाइन गाइडेंस भी होना जरूरी है। ओके तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके लास्ट जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.5 लाख से ज्यादा मैसेंजर्स भेजे गए। और उनमें आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना शमीम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये जो रसूलों में से थे। एंड देन कैन यू सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, क्या नाम है? इस्माइल अलैहिस्सलाम और इशाक अलैहिस्सलाम। यस, नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बनी इसराइल कौन थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद क्या कहलाई? बनी इस्माइल। ओके, द चिल्ड्रन ऑफ इस्माइल। और इसहाक अलैहिस्सलाम जो है, कैन यू जस्ट पॉइंट इट आउट? इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का निक नेम था, हाँ हियर यू कैन सी इट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम का निक नेम टाइटल वाज इसराइल, गॉट इट? एंड ही हैड 12 सन्स, 12 बेटे थे उनके। तो वो सारे 12 बेटे क्या कहलाए उनके? बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, गॉट इट? फिर से बताती हूँ अगर नहीं समझ में आया है। फिर से देखिए यहाँ पर ये वाला एक और है, कैन यू सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एब्राहम लिखा हुआ है। एब्राहम लिखा हुआ है ना, उनके 2 बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन्स में से कोई रसूल नहीं आए, एंड में आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कहलाए बनी इस्माइल। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, तो याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था? इसराइल। और उनके कितने बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के? 12। और वो 12 बेटे और उनके कबीले, उनकी जनरेशन सब कहलाई बनी इसराइल, गॉट इट? और उन्हीं में फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। ऑलमोस्ट 4000 कितने नबी आए बनी इसराइल में से? ऑलमोस्ट 4000, 4000 के करीब नबी आए बनी इसराइल में से। सो अब अभी समझ में आया हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं इस आयत में। ओके, ये जो आयतें हैं यहाँ से बनी इसराइल के बारे में हम स्टडी करेंगे। और कौन थे बनी इसराइल, समझ में आया? कैन यू रिवाइज इट इन शॉर्ट शमीम? बाजी I'll try. Yeah. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल Right. अलैहिस्सलाम के बच्चों को बनी इस्माइल का कहा जाता है। Yes. और इसराइल अलैहिस्सलाम के बच्चों को देवर 12 सन्स, उनको बनी इसराइल कहा जाता है। हाँ, तो ये किसका टाइटल था? इसराइल। इसराइल इस्माइल इसहाक अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है नहीं, नो नो नो, इसहाक अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था
इसराइल. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड टू रिपीट. नो प्रॉब्लम, मिस्टेक हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी लर्न आउट ऑफ आवर मिस्टेक्स. तो आज जिसने भी फर्स्ट टाइम सीखा है तो इट्स ओके. आप यहाँ इसलिए चार्ट्स भी ले लीजिए. देखिए इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जैकब लिखा हुआ है यहाँ पर. जैकब इज याकूब अलैहिस्सलाम. ओके. और याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल. ये आपको लिखना है आपके पेपर पे. याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल इसराइल. और उनके 12 बेटे थे तो वो सब क्या कहलाए? बनी इसराइल. गॉट इट. और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है कि बनी इसराइल में ऑलमोस्ट 4000 के करीब नबी आए बनी इसराइल में से. हाँ, इतना बैकग्राउंड हमारे लिए इनफ है. अब हम आयतों पर चलते हैं इंशाल्लाह. सो आयत 40, अल्लाह सुब्हानहू तआला addresses बनी इसराइल. अल्लाह ताला says या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल. यानी किससे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? बनी इसराइल से. अभी कुरान कब नाजिल हुआ ये भी हमको सोचना है. ठीक है. कुरान कब नाजिल हो रहा था? ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत कौन सी है? सूरत अल बकरा. कौन सी सूरा है? सूरत अल बकरा. ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है? मक्की. कौन बोला? चांद. आंटी, इट इज अ रॉन्ग आंसर. मदनी, मदनी, सॉरी. हाँ, मदनी सूरा है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मक्की सूरा एंड मदनी सूरा? Before hijrat of Aap sallallahu alaihi wasallam is Makki, and Yes. after hijrat is Madni. वेरी गुड. तो सूरत अल बकरा मदनी सूरा है, हिजरत के बाद नाजिल हुई. ओके. या दैट मींस ये आयतें मदीना में नाजिल हो रही है हिजरत के बाद. गॉट इट. अभी वी नो कि फर्स्ट 10 years मक्का में फर्स्ट 13 years मक्का में सूरतें नाजिल हुई, आयतें नाजिल हुई. एंड लास्ट 10 years मदीना में आफ्टर हिजरत. तो ये 13 + 10 कितना हुआ? टोटल 23 years का रिसालत का टाइम है जब आयतें नाजिल होती थी. तो अभी मदीना में जब आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीना में बनी इसराइल के डिसेंडेंट्स रहते थे. यहूद बहुत ज्यादा मेजॉरिटी मदीना में रहते थे. दे वर द रेसिडेंट्स. तो अभी जो हमने चार्ट देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चों का और फिर वो याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों का, तो उनके जनरेशंस में से जो लास्ट जनरेशन थी वो मौजूद थी ना इधर मदीना में. आर यू गेटिंग मी? हाँ. तो अब अल्लाह ताला जो है ये बनी इसराइल से फरमा रहे, जो गुजर गए पीछे वो गुजर गए है ना. अभी जो जनरेशन that was present at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina, उनसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ओ बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर नाजिल की, इनाम की मैंने. अल्लाह ने बनी इसराइल पर क्या नेमतें इनाम की थी? आपको अभी मैंने एक नेमत तो बता दी कि बनी इसराइल में से कितने नबी आए थे? ऑलमोस्ट 4000. ऑलमोस्ट 4000. हाँ. और उन नबियों में से मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली. कौन सी किताब? तौरात. हाँ. तो ये किसकी किताब है? किसने नाजिल फरमाई? अल्लाह सुब्हानहू तआला. अल्लाह ताला ने. राइट. तो अल्लाह की किताब उनको मिली. ये नेमत है कि नहीं है? बिल्कुल है ना. फिर और कौन सी किताब आई उनमें? ज़बूर आई, इंजील इंजील और आई. ज़बूर. कैन यू सी हियर ऑन द स्क्रीन देयर इज अ पोस्टर. प्रॉफिट्स हमने देखे कि ऑलमोस्ट 4000 आए. फिर तौरात नाजिल हुई किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम पर. फिर इंजील नाजिल हुई किस पर? ईसा अलैहिस्सलाम पर. जबूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर. ये सब क्या है? नेमतें है या नहीं? अल्लाह की ब्लेसिंग्स है. यस. फिर हम पढ़ेंगे अभी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर निकले
तो उन लोगों के लिए खाना पीना कुछ भी नहीं था. दे वर लैक्स ऑफ देम. तो अल्लाह ने रेडीमेड खाना उतारा. वो कौन सा था? मन्ना सलवा. मन्ना सलवा, रेडीमेड खाना आसमान से फॉर लैक्स ऑफ पीपल एवरी डे. कैन यू इमेजिन? अगर नहीं अल्लाह ताला नाजिल फरमाते तो उन लोग का क्या होता इन द डेजर्ट? क्या खाते? बिकॉज वो लोग तो अपना घर बार छोड़ के निकले थे. गॉट इट? अच्छा, जब फिरौन पीछे पड़ा था दुश्मन और सामने क्या दिखा? समंदर. तो अल्लाह ताला ने क्या किया? उनके लिए समंदर को डिवाइड कर दिया, पार्ट कर दिया. एंड पार्टिंग ऑफ द सी, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी उन पर कि समंदर को फाड़ दिया, उसमें से रास्ता बना दिया और उनको बचा लिया. किससे? फिरौन से. ये सब हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह. सेव्ड फ्रॉम फिरौन. फिर जब ये लोग डेजर्ट में इतने सालों तक घूमते रहे तो उनके पास they did not have house, they had no roof upon their heads, so they were shaded with the clouds. अल्लाह ताला की और एक नेमत, they were shaded with the clouds. और उनमें बहुत सारे नबी तो आए और ऐसे 2 बादशाह आए, जबरदस्त बादशाह. वो कौन थे पता है? सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, जो नबी भी थे और बादशाह भी थे. सुपर पावरफुल किंग्स. ऐसी बादशाहत न उनसे पहले किसी को मिली न उनके बाद. तो ये सारी अल्लाह की नेमतें किस पर थी? बनी इसराइल पर. जो हमने, कैन यू सी दिस? दीज वर द नेमत, फ्यू ऑफ देम, जो हमने देखे कि बनी इसराइल कौन थे. अभी इनके डिसेंडेंट्स मौजूद है मदीना में. तो अल्लाह ताला कुरान पाक में ये आयतें नाजिल फरमा के बनी इसराइल से फरमा रहे हैं. ये जो वर्ड है ना यहाँ पर, आई विल आस्क यू टू सर्कल सम वर्ड्स. शमीम, शेयर द स्क्रीन. आपको कुछ वर्ड्स सर्कल करने आज, और वो उसमें हमको क्या सीखने मिल रहा है वो देखना है हमको. ओके? सो या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू को सर्कल करना है. इसमें उज़कुरू, रिमेम्बर माय फेवर. हाँ, और उर्दू में क्या है? तुम सब याद करो. और क्या वर्ड मिलता है यहाँ पर? जिक्र करो. लेकिन लास्ट में क्या है? रॉ वाव पेश. तो दिस इज ऑर्डर in plural form. All of you try to remember my favors that I made upon you. So first order क्या था? याद करो, जिक्र करो, remember my blessings. Now second order, वअफ़ू, और तुम सब पूरा करो. वफा वर्ड है इसमें. बिअहदी, मेरा वादा पूरा करो, मेरी प्रॉमिस पूरी करो. किसकी प्रॉमिस? अल्लाह ताला की. अल्लाह ताला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि मेरी प्रॉमिसेस को तुम पूरा करो तो मैं तुम्हारी प्रॉमिसेस को पूरा करूंगा. तो औफू आया ना, इसको भी सर्कल करेंगे. औफू, फिर से फावाव पेश फू है. तुम सब पूरा करो. फुलफिल माय प्रॉमिस सो दैट आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस. व इयाया फरहबून, और सिर्फ मुझी से तुम सब डरो. फरहबून, तुम सब डरो. ये भी ऑर्डर है. नाउ क्या फरमा रहे अल्लाह ताला इस आयत में कि अभी तक सारे नबी बनी इसराइल में से आ रहे थे. तो बनी इसराइल वेर वेटिंग नाउ इन मदीना एंड दे न्यू, उनकी किताबों में लिखा हुआ था. उनकी किताब कौन सी हमने अभी देखी? तौरात एंड इंजील में इट वाज मेंशन्ड क्लियरली कि आखिरी नबी आएंगे और आखिरी नबी मदीना के आसपास में ही मबूस होंगे. The last messenger will descend in the area around Medina. So the Jews
the Bani Israelites, they were waiting for the last messenger. वो इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे आखिरी नबी, लेकिन क्या हुआ, आखिरी नबी आए, पर उनको पता चला कि ये तो बनी इसराइल में से नहीं आए, बल्कि बनी इस्माइल में से आए. Now again coming back to the chart. हाँ, see, Bani Israel are from Ishaq alayhi salam's son, Yaqub alayhi salam's children, and Bani Ismail are Ismail alayhi salam's sons. But can you see कि who was their father? Ismail alayhi salam and Ishaq alayhi salam, दोनों के अब्बा कौन थे? इब्राहिम alayhi salam. तो क्या फर्क पड़ता है कि एक बेटे के खानदान में से नबी आ रहे हैं या दूसरे बेटे के खानदान में से? उनके फोर फादर तो कौन थे? इब्राहिम अलैहि सलाम. तो फिर ये प्रॉब्लम इनके अंदर क्यों आई? दे हैड दिस जेलसी प्रॉब्लम. हसद थी उनको, जलन थी उनको. वो कहते थे, वो समझते थे कि इतने नबी हम में से आए, सो वी आर द चोजन पीपल, वी आर फेवर्ड बाय अल्लाह, तो आखिरी नबी भी हम ही में से आना चाहिए, तभी हम उनको मानेंगे. अगर वो दूसरे में से आए हैं तो हम उनको मानेंगे नहीं. गॉट इट? तो ये उनकी क्या थी? जेलसी प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम. दिस वी डिस्कस्ड व्हाइल स्टडीइंग अबाउट इब्लीस, isn't it? So what was the promise of Allah Ta'ala? अल्लाह ताला ने इनसे अपनी किताबों में वादा लिया हुआ था कि आखिरी नबी आएंगे तो तुमको क्या करना है? आखिरी नबी का साथ देना है, उन पर ईमान लाना है और उनको फॉलो करना है. अगर तुमने आखिरी मैसेंजर को फॉलो किया तो मैं भी अपना वादा, अपनी प्रॉमिस पूरी करूंगा. तुमको क्या मिलेगी? जन्नत, एज प्रॉमिस्ड. तो एंड में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? व इया फरहबून, और सिर्फ मुझी से तुम डरो, सिर्फ मुझी से डरो. यहाँ पर डरने की बात क्यों आई? हम लोग किससे डरते हैं? हम लोग तो दुनिया से डरते, दुनिया वालों से डरते, पैसे वालों से डरते, isn't it? लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगी, वो पड़ोसी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, isn't it? लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि दुनिया से डर के कोई फायदा नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो. डरने का मतलब क्या है? कि अल्लाह राजी तो तुम्हारा यू विल बी सक्सेसफुल. अगर तुम दुनिया को राजी कर भी लो, लेकिन अगर अल्लाह तुमसे राजी नहीं, अगर अल्लाह नाराज है, तो फिर व्हाट आर यू सक्सेसफुल? टेल मी चांद आंटी. I didn't get your question, please. I said अगर दुनिया राजी हो भी जाए, लेकिन अगर अल्लाह नाराज है, नहीं, तो no कैन good. वी बी सक्सेसफुल? No, never, never. नेवर. तो अगर हमको दुनिया में रहकर कोई काम करना है तो हमें सिर्फ किसका खौफ रखना है? अल्लाह का. क्या खौफ रखना है? डज दैट मीन कि अल्लाह हमको डरा रहे हैं? कि अल्लाह ताला हमको हमसे गन शॉट पे हाथ में लकड़ी लेके कोई काम कराना चाहते हैं? नो. देन यू विल हैव टू पे फॉर योर ओन कॉन्सिक्वेंसेस, isn't it? दुनिया में भी हर गलत काम का कॉन्सिक्वेंस होता है या नहीं होता है? होता है. और आखिरत में, आखिरत में क्या है कॉन्सिक्वेंस बुरे काम का? जहन्नम. जहन्नम की आग है. राइट. अल्लाहु अकबर. सो इस आयत में हमको 3 ऑर्डर्स मिले बनी इसराइल को कि रिमेंबर योर फेवर्स दैट अल्लाह हैज डन अपॉन यू. नाउ व्हाई ओनली बनी इसराइल? आप और मैं, हम पर अल्लाह की क्या नेमतें हैं अगर हम काउंट करें? कैन वी स्टार्ट काउंटिंग? क्या अल्लाह ने हम पर कोई नेमतें नाजिल की है? डज
Allah have any favors upon us? आपको लगता है ऐसे? जरा हाथ ऊपर करे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझ पर कुछ तो नेमतें दी है? आई हैव गॉट सम ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम काउंट करने बैठे तो क्या काउंट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हम वो काउंट कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी चलो लेट अस स्टार्ट। आपको एक एक चांस मिलता है। आई विल स्टार्ट अनम्यूटिंग। आप बोलो आपको बेस्ट नेमत जो मिली है वो क्या है, और डोंट रिपीट। इफ वन ऑफ यू सेज समथिंग, डोंट रिपीट इट, ओके? यस आयशा। सबसे बेस्ट नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने आखिरी नबी का उम्मती आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। वेरी गुड। और हमको उनका उम्मती बनाया। राइट। अनम। Allah Ta'ala has given us the Quran as a guidance. माशाल्लाह, वेरी गुड। सुरैया। सो रसूल हो गए, कुरान हो गया। यस सुरैया। जी बाजी, अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। निशात। बाजी, हमें अल्लाह ताला ने सब सोचने समझने की कुव्वत दी, हिदायत को फॉलो करने की अंडरस्टैंडिंग दी, बहुत बड़ी नेमत है। माशाल्लाह, वेरी गुड। गाइडेंस। यस शमीम। Allah Ta'ala has given us free oxygen to breathe. फ्री ऑक्सीजन, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यस अरीब। अंजुम। हाँ। अल्लाह ताला ने हमको दीनदार घराने में पैदा किया। माशाल्लाह। यस अरीबा। जरीना, समीना। Hello? यस। Yeah. I will say my parents. योर पेरेंट्स, वेरी गुड, अ बिग ब्लेसिंग, माशाल्लाह। नसरीन। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी, आई हाँ एम हाँ, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड फैमिली। किश्वर। अल्लाह ताला ने हम लोग को 5 वक्त की नमाज दी, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। यस जहीन। Allah Ta'ala has given us fruits and vegetables to eat. Fruits and vegetables and food, mashallah, very good. Gausia. Hasina. नेक औलाद। नेक औलाद, very good, alhamdulillah. Yes Gausia. Shaheen. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत, अल्हम्दुलिल्लाह। यस हिरम। सलमा आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ने हमें तौबा करने वालों में से बनाए हैं और तौबा का आदमी। यस अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा। सलमा आंटी। इतनी बड़ी छत दी है, आसमान के जरिए हमारी हिफाजत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सुरैया। बाजी जूम भी दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने हमको जूम दिया है जिसपे हम बैठकर फ्री ऑफ चार्ज घर बैठे कुरान सीख रहे हैं। यस फाइम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी अल्लाह ताला ने हम लोग को फिजिकली और मेंटली सही सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। यस अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हम लोगों को आंखें, पैर, कान, नाक, बॉडी के पार्ट सही सलामत दिए और इसका बहुत बड़ा शुक्र है, क्योंकि जिनके पास ये नेमतें नहीं है वो लोग कितनी तकलीफें उठाते हैं। और जैसे अभी कोई अंधा है तो वो दुनिया के कोई कलर्स नहीं देख सकता है। Got it. और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी। यस अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैबुन। अल्लाह ताला ने हमें वादा किया है कि मैं तुम माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, अगर हमने 5 मिनट सबसे फीडबैक लिए और इतनी सारी नेमतों का जिक्र किए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सब मेरे साथ मिलकर कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या है? इतनी सारी नेमतों का हमने शुक्र अदा कर दिया और इस
ये तो बहुत कम हमने काउंट की। अगर हम काउंट करने बैठे तो वी कैन नॉट काउंट। इतनी नेमतें अल्लाह ने हम पर नाजिल की, उन सब का हमें नंबर 1 जबान से शुक्र अदा करना है। नंबर 2 दिल में एहसास और जिक्र, दिल में एहसास और जिक्र। अच्छा, इतनी नेमतें मिलकर शुक्र अदा करने से दिल में और क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। सुकून। हाँ, चांदा, दिल में सुकून आता है और हमारा ईमान का लेवल बढ़ता है, isn't it? देन अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है, बढ़ती है। ये सब पॉइंट से हमें लिखना है नेमतों के। हाँ, हम जब इतनी नेमतों को अभी काउंट किए, उसको डिस्कस किए, रोज हम इसके बारे में सोचते नहीं है। जब आयतें आती है तो वी थिंक अबाउट इट, देन वी थैंक अल्लाह विद आवर टंग। इन योर हार्ट यू कैन फील लव फॉर अल्लाह, ग्रैटिट्यूड, सुकून, ईमान बढ़ गया। और क्या अभी किसी ने भी कोई कंप्लेन की इतने सब लोगों में? तो क्या है, शुक्र इज ऑपोजिट ऑफ कंप्लेन, इनग्रैटिट्यूड। अभी जब शुक्र अदा करने के लिए इतनी चीजें हैं और अगर कुछ चीजें नहीं भी दी है अल्लाह ने हमको, तो उसकी शिकायत क्यों लेकर बैठना है? नहीं दी है तो ठीक है, उसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी है। लेट अस लुक एट द पॉजिटिव साइड कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें। और जो हमारे ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, उससे कैसे शुक्र अदा होता है सुरैया? हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उससे कैसे शुक्र अदा करते हैं हम, बताओ जल्दी। एक तो हमने जबान से किया, जबान दूसरा से। दिल से किया। हाँ बोलो। जबान से, दिल से और अमल से, और चीजों का सही इस्तेमाल करके। एग्जैक्टली। तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स है उससे हम क्या करते हैं, उन नेमतों का यूज करते हैं, सही इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर बनी इसराइल से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब तुम लोग जो हो, तुम्हारे अंदर आखिरी रसूल आ चुके हैं, तो तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, उनको पहचानो, उनको मानो, फॉलो हिम। तुम अपनी प्रॉमिस पूरी करो तो मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करूंगा, तुमको जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। और सिर्फ मुझसे डरो, लोगों से डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे लोग ये कहे कि ये बनी इसराइल में से नहीं, तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल है, तो उन्हें अल्लाह के रसूल कहकर ही मानना है। उसमें तुमको कोई तासुब या कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं लाना है। ओके, दैट वाज आयत 40। अभी आयत 41 पर चलते इंशाल्लाह। और क्या ऑर्डर्स है, देखिए सर्कल करते चलेंगे हम ऑर्डर्स को। एक्सक्यूज मी। आयत 41, व आमिनू, ये भी ऑर्डर है। वह का मतलब क्या है? और आमिनू, तुम सब एक्सक्यूज मी, आमिनू में क्या वर्ड मिलता है? ईमान। हाँ, तो तुम सब ईमान ले आओ। ऑल ऑफ यू बिलीव बिमा अंजलतु, उस पर जो नाजिल किया मैंने। किस पर ईमान लाओ? उस पर जो नाजिल किया मैंने। अभी मैं कौन है यहाँ पर? अल्लाह ताला। और क्या नाजिल फरमाया अल्लाह ने? कुरान। सो हैव टू मेक नोट्स देयर कि ईमान ले आओ इस कुरान पर जो मैंने नाजिल किया। मैं कौन? अल्लाह ताला ने। ओके, ये कैसी किताब है? मुसद्दिक़ल लिमा, तस्दीक करने वाली, कंफर्म करने वाली। किसको कंफर्म करती है? लिमा माअकुम, लिए जो साथ है तुम्हारे। बनी इसराइल से अल्लाह ताला कह रहे, ये जो कुरान है, इट इज अ बुक फ्रॉम अल्लाह, जस्ट लाइक अ बुक दैट इज विथ यू, माअकुम, तुम्हारे साथ। कौन सी बुक्स थी उनके पास? अभी हमने देखे, तौरात, इंजील, जबूर। वला तकूनु, और नहीं तुम सब हो जाओ, अव्वल काफिरिम बिही, अव्वल, अव्वल किसको कहते हैं? फर्स्ट। काफिरिन, इनकार करने वाले।
बिही इस कुरान का, इस कुरान का इनकार करने में फर्स्ट न हो जाओ। वला तश्तरो, और क्या ऑर्डर है, और नहीं तुम सौदा करो, नहीं तुम बिजनेस करो, भी आयाती, मेरी आयात के बदले, मेरी किताबों के बदले, समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत, समनन कहते हैं कीमत, प्राइस, कलीलन थोड़ी, स्मॉल अमाउंट। और एक ऑर्डर, व इयाया, और सिर्फ मुझी से, फत्तकून, फिर तुम सब तकवा करो, फिर मुझी से तुम सब तकवा करो। We'll say it in English. 41. Wa aminu, and all of you believe, bima anzaltu, in whatever I have sent down, revealed. What have I sent down? ये anzaltu को underline करके you'll write down Quran. What is sent down? Quran. Musaddiqan, confirming, lima, that, which, ma'akum is with you, ma'akum is with you, kum का मतलब तुम, ma'a means साथ, with. इसको अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे, तौरात एंड इंजील, ओके। वला तकूनु, and do not be awwala, the first one, and do not be the first one, kafirin, to disbelieve, amongst the disbelievers, bihi, with the Quran. Do not be the first one to disbelieve in the Quran, to disbelieve in the Rasul. Wala tashtaru, and do not exchange, bi ayati, my signs, my verses, thamanan qalila, for a small price. Thamanan is price, qalila, small. Fa iyaya fattakun, then fear me alone. Wa iyaya is me alone, and fattakuni, fear me alone, be conscious of me only. Who is me here? Allah Ta'ala. ठीक है. So what does Allah Ta'ala say in ayat number 41? As I told you, that these were the descendants of Bani Israel in Medina. मदीना में रहने वाले जो बनी इसराइल थे, उनसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम सब ईमान ले आओ। बनी इसराइल की प्रॉब्लम क्या थी, वो ईमान क्यों नहीं ला रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? We just now discussed. Why? Because he came from Bani Ismail and not Bani Israel. Very good. Huh? Very good, Anam. So Allah Ta'ala is specially commanding them कि तुम सब ईमान ले आओ। इस पर यह कुरान किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। तौरात किसने नाजिल की? अल्लाह ने। इंजील किसने नाजिल की? अल्लाह ने। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? The source is same, Allah Ta'ala. And this Quran is confirming your book, क्योंकि अल्लाह ही ने भेजी है, तो इसमें जो कमांडमेंट्स है वो एक जैसे ही होंगे ना, ऑपोजिट तो नहीं हो सकते, करेक्ट? तो तुम सब क्या करो, इस पर ईमान ले आओ। दिस वाज फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड क्या है? डोंट बी द फर्स्ट वंस टू डिसबिलीव। व्हाई अल्लाह ताला सेड कि डोंट बी द फर्स्ट वंस टू डिसबिलीव? बिकॉज as we saw कि what all, these were the nemat they got, right? The blessings. तो इतने नबी आए थे इनके पास, इतनी किताबें आई थी, तो इन लोगों के पास अल्लाह के दीन का नॉलेज था. So they were considered to be knowledgeable people. ये दीन वाले लोग थे, इल्म वाले लोग थे. And amongst them were scholars. उनके अंदर उलेमा भी थे जो तौरात और इंजील का इल्म रखते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, isn't it? So, और जो
मक्का मदीना पेनिनसुला के लोग थे, वहां पर अभी तक कोई नबी और रसूल आए थे क्या? नहीं आए थे। सबसे पहले वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम आके गए और फिर उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। उसके बाद कोई नबी नहीं आए थे। तो इन लोगों के पास अल्लाह के दीन का कोई नॉलेज था? नहीं था। इनके अंदर कोई स्कॉलर्स थे? नहीं थे। इनके पास कोई नबी नहीं आए थे, तो उनको पता भी नहीं था कि नबी जो होते हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए, उनसे कैसे इल्म हासिल किया जाए। ये किसको नहीं पता था? मक्का और मदीना के लोगों को, द अरब पेनिनसुला। लेकिन बनी इसराइल, they were knowledgeable people or there were scholars amongst them. तो अल्लाह ताला फरमा रहे बनी इसराइल से कि तुम्हारी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, तौरात और इंजील में भी निशानियां हैं कि आखिरी रसूल कैसे होंगे। तो तुमको तो सबसे पहले ईमान लाना चाहिए, और तुम कहाँ इनकार कर रहे? डू यू अंडरस्टैंड? ऑपोजिट्स है ईमान और इनकार। तुमको तो सबसे पहले ईमान लाना चाहिए बिकॉज यू नो, because of the knowledge that he is the true रसूल। तो तुमको तो पहले ईमान लाना चाहिए, लेकिन तुम तो क्या कर रहे हो? पहले इनकार कर रहे हो। अच्छा, तुम्हारे इनकार करने से होगा क्या? पीपल लुक अप टू यू, पीपल लुक अप टू द स्कॉलर्स, है ना? आज आप बताइए कि अगर कोई मसला आता है हमारे घर में, कोई शादी ब्याह, कोई दीन का मसला आता है, तो हम लोग पूछने किसके पास जाते? हाँ चांद आंटी, कोई मसला आता है तो हम लोग पूछने शमीम किसके पास जाते? बोलो। कोई उलेमा के पास जाते हैं बाजी। एग्जैक्टली, यू गो टू सम मौलाना, सम आलिम, सम स्कॉलर, है ना? और उनसे जाके हम फतवा पूछते हैं या अपना मसले का हल पूछते हैं। तो व्हाई? बिकॉज वी लैक नॉलेज एंड वी लुक अप टू देम कि ये नॉलेजेबल पीपल है। वैसे ही एक्सक्यूज मी वैसे ही ये लोग भी इन स्कॉलर्स को मानते थे, बनी इसराइल के। तो अल्लाह ताला सेइंग दैट if you will believe, there are so many people who will believe in the last Rasul sallallahu alaihi wasallam. अगर तुम लोग ईमान लाए तो इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे ईमान लाएंगे। अगर तुमने पहले इनकार कर दिया तो वो सब इनकार कर जाएंगे। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल से ये प्रॉमिस ले रहे, गॉट इट? और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? वला तश्तरू, तुम क्या कर रहे हो? सौदा करने बैठे हो क्या? बिजनेस कर रहे हो अल्लाह की आयतों का थोड़ी सी कीमत पर? यहाँ पे क्या थी थोड़ी सी कीमत? ये जो स्कॉलर्स थे बनी इसराइल के, एज आई टोल्ड यू, कि इन लोगों का बहुत बड़ी पोजीशन थी सोसाइटी में। पीपल फॉर पीपल दे वर लाइक एट द हायर रैंक। और फिर लोग जो है इन्हीं से पूछकर सब काम करते थे दीन का, और इनके पास बहुत ज्यादा गिफ्ट्स जाते, रिवॉर्ड्स जाते, पैसा जाता, और फिर ये लोगों को क्या करते? उसका मसले का हल बताते। तो अल्लाह ताला से कि तुमको तो पता है कि सच क्या है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर भी ईमान नहीं लाते, तो तुम अल्लाह की उन आयतों का सौदा कर रहे हो। यू आर डूइंग अ बिजनेस डील। और कीमत क्या मिल रही है तुमको? थोड़ी सी कीमत, यानी ये दुनिया का थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा पैसा कब तक चलेगा? ये दुनिया का रुतबा, पोजीशन, ऑल दिस इज टेम्पररी एंड ऑल दिस इज मिनिस्क्यूल, बहुत छोटी कीमत है। तो फिर क्या करो? वइय्या फत्तकून, सिर्फ मुझी से तुम तकवा करो। आरंट यू कॉन्शियस ऑफ अल्लाह? कि अल्लाह को तो सब मालूम है और तुम
कैसे ये धोखेबाजी का काम कर रहे हो, कैसे ये ऐसे बिजनेस डील कर रहे हो कि जानबूझकर सच को छुपा रहे हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते। अस्तगफिरुल्लाह। गॉट इट? समझ में आई ये दोनों आयतें? जी हाँ। जी बाजी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे 42, आयत नंबर 42। व और ला नहीं तलबिसु, और नहीं तुम लिबास पहनाओ, नहीं तुम मिक्स करो अल हक का, हक को। व्हाट इज हक? सच। हक मीन्स सच। बिल बातिली, साथ बातिल के। बातिल यानी झूठ। सच और झूठ को मिलाओ मत, मिक्स मत करो। वतक तुमु, और क्या ऑर्डर है? और नहीं तुम छुपाओ अल हक का, हक को, सच को। व अंतुम तालमून, और हालांकि तुम जानते हो। तालमून में इल्म वर्ड है, जरा तालमून को देखिए। त यानी तुम, ऐन लाम मीम, इल्म विला, इसमें इल्म। तो तालमून क्या हो गया? तुम इल्म रखते हो, तुम जानते हो। और हक का मतलब क्या देखे हमने? बोलो, हक का मतलब क्या देखे? सच, द ट्रुथ। ठीक है। और हक का ऑपोजिट क्या है यहाँ पर? बातिल। बातिल यानी क्या? झूठ। तो एक ही आयत में हमको ऑपोजिट्स मिल गए यहाँ पर। और नहीं तुम मिक्स करो अल हक का बिल बातिली, हक को बातिल के साथ। हक यानी क्या? बोलो जल्दी शमीम। सच। सच। और बातिल यानी झूठ। तो दोनों क्या हुए? ऑपोजिट्स हुए ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, डू नॉट मिक्स द ट्रुथ विद द फॉल्सहुड। इंग्लिश में देखेंगे, एंड डू नॉट मिक्स द ट्रुथ विद द फॉल्सहुड, एंड डू नॉट हाइड द ट्रुथ, एंड एक्चुअली यू नो, यू हैव ऑल द नॉलेज। ठीक है। क्या क्या थी यहाँ पर? सच क्या था और झूठ क्या था? बोलो, क्या समझ में आया आपको? सच क्या था और झूठ क्या था? किसको मिक्स मत करो अल्लाह ताला ने फरमाया? सच तो कुरान है बाजी, और झूठ वो है जो पीपल वुड आस्क फॉर फेवर्स, एंड जो स्कॉलर्स लोग उसको ट्विस्ट एंड टर्न करते। ओके, सुरैया तुम बोलो। बाजी सच कुरान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। हाँ, और झूठ क्या था? झूठ वो था जो वो अपनी मर्जी से गढ़ रहे थे और जो छुपा रहे थे। तो देखिए कि सच को छुपाना भी क्या होता है? झूठ होता है। और उनकी किताब में क्लियरली मेंशन था। तो सच को जो छुपा रहे थे, वो सच को, हक को छुपाना भी क्या होता है? वो झूठ बोलना होता है। इफ यू हैव नॉलेज and if you do not share it with others, then you are doing a wrong. You are doing a wrong. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, उसको क्या करो? लोगों तक पहुंचाओ। यहाँ पर ये लोग पहुंचाने के ऑपोजिट उसको छुपा रहे थे। अच्छा, उनके छुपाने का नुकसान क्या था? उनके छुपाने का नुकसान क्या था? बोलो जल्दी सुरैया, शमीम। बाजी लोगों को नॉलेज नहीं मिल रही थी, वो लोग they were confining it to themselves. नंबर 1, वेरी गुड। यस सुरैया। बाजी उनकी सरदारी छीन जाएगी इसलिए वो लोग छुपा रहे थे। ओके, और छुपाने का नुकसान लोगों के लिए क्या था? बाजी गुमराही। गुमराही, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एक है, समझो सुनो, अगर है ना, एक बात है
कि मैंने इनकार किया, नाउजुबिल्लाह, तो वो मुझ तक है कि मैंने नहीं मानी और मैंने छोड़ दी, ओके। लेकिन अगर वो स्कॉलर है और वो स्कॉलर नहीं मानते, और अगर वो स्कॉलर सबके सामने ये कह दे कि ये सच्चे नबी नहीं है, ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो स्कॉलर के कहने से क्या होता है, पूरी सोसाइटी में जितने लोग उनको फॉलो करते हैं वो सब कंफ्यूजन में आ जाएंगे. दे विल गेट कंफ्यूज्ड whether to follow or not follow. So whom will they follow? They will follow the leaders. And if the leader himself doesn't follow, तो इतने सारे लोग हक से गुमराह हो जाएंगे, सही रास्ते से भटक जाएंगे. Got it? तो it was not only a नुकसान फॉर वन पर्सन, बट वो पूरी सोसाइटी का नुकसान था. समझ में आ रहा है? और उसकी वजह से बाकी लोग जो अवाम थी, कॉमन पीपल, उन लोगों का भी नुकसान हो रहा था. गॉट इट? और यहाँ पे जो आया है कि थोड़ी कीमत पर सौदा ना करो, तो ये भी होता था कि उन लोगों ने जो उनकी किताबें थी तौरात और इंजील, उसको बुक फॉर्म में बाइंड तक नहीं किया था. आज हमारे पास कुरान पूरा बाइंडेड है हमारे हाथ में, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है. कैन एनीबडी जस्ट टेयर वन पेज एंड वहां पे दूसरा एक क्लिप कर दिया, बाइंड कर दिया? ऐसा कोई कर सकता है? नहीं. लेकिन उन लोगों ने तौरात और इंजील को बाइंड ही नहीं किया था, उसको फाइल फॉर्म में रखते थे. और जब भी कोई आता उनसे, स्कॉलर्स से, वो पूछने के लिए, क्यों आते थे लोग? क्योंकि लोगों के पास तौरात और इंजील नहीं होती थी. ओनली देयर स्कॉलर्स, उनके उलेमा के पास ही होती थी. तो कॉमन लोगों को, कॉमन पब्लिक को कुछ भी प्रॉब्लम आती तो वो जाते स्कॉलर्स के पास, एंड एवरी टाइम दे हैड टू टेक अ गिफ्ट और सम प्राइज टू द स्कॉलर्स. और फिर स्कॉलर देखते जितना बड़ा प्राइज होता, जितना बड़ा गिफ्ट होता, तो उस हिसाब से आंसर देते. अगर समझो इतना बड़ा बिजनेसमैन आया है और उसने आके पूछा कि इज इट ओके अगर मैं लोन विथ इंटरेस्ट लूं, सूद पे पैसा लूं, तो अभी वो बिजनेसमैन ने ना इतना बड़ा गिफ्ट लाया है स्कॉलर के लिए, तो इतना बड़ा गिफ्ट देखकर वो बिजनेसमैन से कहेगा कि इट्स ओके अगर तुमने इंटरेस्ट सूद पे लिया है पैसा, तो इट्स ओके. तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि अल्लाह के कमांडमेंट्स तो को चेंज कर देते थे थोड़े से फायदे के लिए. गॉट इट? और अगर कोई गरीब आता और वो गरीब से वो क्वेश्चन करता और उसने हार्डली कुछ गिफ्ट लाया है, तो फिर उसको क्या कहते कि नहीं, अगर तुम सूद का पैसा लोगे तो फिर जहन्नम ही तुम्हारा ठिकाना है. उसको डराएंगे. क्यों? क्योंकि उसने कोई गिफ्ट नहीं लाया है. सो ऐसे वो अल्लाह की आयतों का क्या करते थे? सौदा करते थे. तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो. ये हमने तकवा पढ़े थे शुरू में, द कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह. और इससे पहले क्या आया? व इया फरहबून, सिर्फ मुझसे तुम डरो. तो आज हमने एटलीस्ट ये 2 लेसन सीखने हैं. ये नहीं सोचेंगे कि आयतें बनी इसराइल की है. एवरी आयत इन द कुरान इज फॉर मी एंड इट इज शोइंग अ मिरर टू मी. तो एटलीस्ट हम ये करेंगे. पहले हमने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया, अब हम अल्लाह से किए हुए हर प्रॉमिस को पूरा करेंगे और सिर्फ अल्लाह से डरेंगे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे. व्हाट इज अल्लाह का तकवा? विल से अल्लाह की नाराजगी से बचना. यस, अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए क्या करेंगे शाहीन? बाजी सबसे पहले तो वी विल अवॉइड डूइंग सिंस. हम बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे गलत काम के, उससे डरेंगे. और क्योंकि वो बैड कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली दोजख की तरफ लेकर जाएंगे, तो अल्लाह की
गुस्से से we should fear the anger of Allah subhanahu wa ta'ala and try to save ourselves by not being indisciplined. Okay, Alhamdulillah, good. Taqwa is a very good balance between a right hand and a left hand. हाँ, अभी राइट हैंड आप लोग दोनों अपना हाथ सामने कर लो, सब लोग. हाँ, अभी राइट हैंड क्या है कि अल्लाह को राजी करना है. राइट हैंड इज अल्लाह को राजी करना है, तो हर वो काम करेंगे जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं. ओके. एंड लेफ्ट हैंड को ऐसे समझो कि अल्लाह की नाराजगी को से बचना है, तो हर वो काम से बचेंगे, गुनाह से बचेंगे जो अल्लाह को नाराज करता है. Got it? So we have to do good and stop from evil, stop from bad deeds. Do good deeds and stop bad deeds. This is taqwa. Very simple definition of taqwa. Do good deeds and stop bad deeds. Do good deeds to please Allah and stop bad deeds to save ourselves from the anger of Allah. Okay, inshallah. Sadaqallahul Azim. We will stop the